آیا نہیں؟ کل جی آیا ہی نہیں، وہ عمران کالو کے ساتھ تھا لیکن وہ نہیں آیا. اچھا، جی مفتی جی مبشر صاحب تشریف لائے ہیں. جی، ان کو استاد جی کو آگے بسم جی اللہ. السلام علیکم. جی، جی السلام السلام علیکم علیکم. ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. شاہ جی ویلکم، دل سے ویلکم. جزاک اللہ. تو اچھا کیسی میں رہا؟ نیچے بیٹھ کے نا سن رہا تھا کافی دیر سے ہی، تو یاد آ گیا مجھے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کیا کائنات بات ہے. ہے شاہ جی، کیا بات مولویوں ہے، کی کیا کیا بات بات ہے. اسی کے پہ ڈال جاتے ساز ہیں سے مولوی. ہے زندگی کا سوز و دروں، جی سوزے دروں. اچھا گزارا یہ ہے کہ ابھی جو آپ مثالیں دے رہی تھی مردوں کی، وہ چند مرد جنہوں نے کچھ غلط کیا، تو یہ اصل میں قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کروڑوں کی کائنات کے اندر کسی ایک سے کوئی جرم سرزد ہو تو پوری جنس کے اوپر وہ حکم لگا دیا جائے. جی جی ابھی دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر ہی ایک لڑکی کا کیس سامنے آیا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبرو بنایا اور اس کی ایک خوبصورت اس کو شوہر دیا، خوبصورت 2 بچے دیے. اس نے صرف وہ پیسوں کی خاطر اس کو سب کچھ ترک کر کے ایک نئے پیسے والے سے شادی کر لی. جی. تو اب کیا کہا جائے گا کہ وہ ساری عورتیں ہوتی ہی ایسے ہی ہیں؟ نہیں ماں کا جو مقام، اپنا ایک مقام دیا جو ہمارے اسلام نے، ہماری شریعت نے، ہاں جی، تو وہ ایک ماں کے غلط کردار سے جس نے اپنے بچوں سے بے وفائی کی، کیا وہ ساری دنیا کی مائیں جو ہیں ایسی ہو گئی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. ماں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھیں، تمام انبیاء کی مائیں تھیں. اگر وہ بیوی کسی کی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی تھی، بیویاں تھیں، تمام نبیوں کی بیویاں تھیں. تو کیا وہ یہ حکم ان پہ بھی لگا دو گے؟ نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. مرد اگر ایک غلط ہے تو کیا اللہ معاف کرے وہ ساری دنیا کے مردی جس کے اندر انبیاء اور رسول آتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور ہمارے بابے بزرگ، اور کروڑوں کی تعداد میں جو وصال کر گئے، جو حیات ہیں اور مزید آگے قیامت تک آئیں، کیا وہ سب کے اوپر حکم لگ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی ہاں ایک آدھ کی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہے، انسان ہے، کوئی غلطی کا وہ پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. میں نا اصل میں طبیب ہوں، تو کچھ عرصہ میں نے کراچی کے اندر نا کلینک کیا نا، اچھا تو میں وہ نا کیس بتا نہیں سکتا، یقین مانیے نہیں، مجھے وہ میں نے شاید کسی کو بتایا ہی نہیں آج تک. جی ایسے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں، بلڈ ریلیشن کے، سمجھ رہی ہیں نا، وہ شاید جی پتہ نہیں جی سمجھی جی کہ نہیں میں سمجھی. سمجھ گئی. تو بھائی کیا وہ سب ایسے ہی ہو گئے، ایک ہی ہو گئے؟ یہ شور آ رہا ہے کسی کا؟ ایسا نہیں ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے. انسان، الانسان مرکب من الخطا، انسان خطا کا پتلا ہے. وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، تم سے بھی ہو سکتی ہے خطا. ہم نبی نہیں ہیں، ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں. ہاں تو اگر عورت ہے تو عورت کوئی نبی کی ماں نہیں ہے، کوئی نبی کی بیویاں تو نہیں بن گئیں، اور نبیوں کی بیٹیاں تو نہیں بن گئیں. جی وہ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں، پھر کیا ہوا؟ مرد اگر غلطی کر سکتا عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ؟ جی شاہ جی، ہم لوگ جو بات کر رہے تھے نا، وہ عورت کی جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی،
تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا صابر بنایا ہے، اور اس کی خوبیاں بیان کی ہیں، وہ ہیں کہ وہ حافظات ہیں، قانتات ہیں، وہ مطلب فرما بردار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج عورت جو ہے اپنے مقام کو اس چیز کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو اس طرح سے تربیت نہیں مل رہی۔ تو ہم لوگ بات کرے تھے عورت کی تربیت کے اوپر کہ ایک مرد جو ہے اگر وہ لاپرواہی بھی کرتا ہے، وہ نہیں بھی دیکھتا، تو عورت کو اس کے مقابل نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ جی وہ مجھے پوچھ نہیں رہا، نہیں دیکھ۔ اس کو اپنی جو تربیت ہے بچوں کی یا گھر کی، اس کی حفاظت جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ جب ہماری مائیں جو تھیں یا ہماری دادیاں یا نانیاں، وہ بے شک اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کو بھرپور تربیتی ماحول ضرور دیتی تھی، جو آج کی ماں نہیں دے رہی۔ اصل میں ہم لوگ بات اصل میں یہاں پر ایک دو چیزیں نیچے بیٹھ کے میں سن رہا تھا، وہ ساری گفتگو سنی ہے میں نے، جو ہوئی ہے نا، سنی ہے میں نے، ماشاءاللہ بہت اچھی بڑی نفیس گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ہو گئی ہے توکل کی کمی۔ جی یہ سب کچھ شاید توکل کی کمی کی بنا پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب ہوا یہ کہ دیکھیں شادی ہو گئی، چلو شادی جیسے بھی ہوئی، پیار محبت میں ہوئی یا وہ جو والدین کرتے ہیں پسند، اس طریقے سے ہوئی، تو جیسے مقدر تھا ویسے ہو گئی۔ اب شادی کے اندر بھی توکل ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ جی اگر تو والدین کسی جگہ کر دیں تو لڑکی یا لڑکے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دیکھو میں تو فلاں جگہ کرنی تھی، وہاں ہوئی نہیں، وہ ابتدا کے اندر ہی نا توکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر معاملات پوری زندگی کے اندر وہ حائل ہو جاتے ہیں۔ میاں یا بیوی اسی ٹائم سوچ لے کہ یار تیرے اللہ نے جو لکھا تھا ہو گیا، بس ٹھیک ہے، چپ ہو جا، اللہ کی رضا کے اندر خوش ہو جا، بس جو ہو گیا نا اللہ نے کر دیا نا۔ یہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو سوچنا پڑے گا۔ اب دیکھیں جی، وہ پھر آگے پہلے لڑکی والے نے یا لڑکی نے یہ دیکھ کے شادی کی کہ وہ بڑا امیر ہے، بعد میں وہ غریب ہو گیا، یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے نا۔ اب یہاں پر بھی اب وہ رولے پڑنے شروع ہوں گے، اور اس ٹائم بھی یہ دونوں سوچ لیں کہ بھائی جیسے اللہ کی مرضی ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ وہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں تو بڑی کھاتے پیتے گھرانے کی، میں کوٹھی بنگلے کار والی، میں تو وہی 50,000 ہزار کی پوشاک پہننے والی، 1 کلو سونا پہننے والی۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھلا بھی نہیں ہے، اب وہ مطلب 2 ٹائم کی روٹی بھی اس کو صحیح میسر نہیں، تقدیر کا ایسا پلٹا آیا ان کے اوپر۔ اگر یہ توکل کر لیں تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں کہ جیسا اللہ نے چاہا بھائی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کی رضا میں خوش ہیں۔ اولاد کی باری آتی ہے، اولاد میں سوچا یہی ہوتا ہے بھائی بچہ ہونا چاہیے، بچہ ہونا چاہیے۔ بھائی تو کیا تو ملحد ہے کیا؟ اے سس صاحبہ، کیا تو ملحد ہو گئی ہے؟ تو کسی خدا پہ تیرا یقین نہیں ہے کیا؟ یہ اولادیں کیا یہ وہ ماں خود بناتی ہے پیٹ کے اندر کہ جس کو مرضی لڑکا بنا دو، جس کو مرضی لڑکی بنا دو؟ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں یہ دین کا، تو کس دین کی حامل ہے تو اے خاتون؟ بے شک۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے ان معاملات کا، لیکن نہیں ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہ سنائی کراتی ہے اس لڑکی کو، چلتے پھرتے تیرے وچوں سانو منڈا چاہیے دئی۔ جی بتائیے حالات پھر وہ ڈگر گوں ہوں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ یہ آپ غور کر لیں، پوری زندگی توکل کے اوپر، توکل اللہ کے اوپر کھڑی ہے۔
तवक्कुल को की कमी हो गई है। हम लोग सिर्फ जुबान के मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ जुबानों के ऊपर, ये नोके जुबान है, अभी दिल के अंदर नहीं उतरा आपके ये कलमा। आप अल्लाह को जानते ही नहीं हो, बेशक नहीं भूल गए आप अल्लाह को मुल्हिद हैं। ये बातनी तौर पे ये ज़ाहरी मुसलमान मुल्हिद हो चुके हैं। इल्हादियत तारी है इनके ऊपर, या अपने किरदार से ये जाहिर कर रहे हैं कि ये मुल्हिद है। इनको कुछ पता ही नहीं, ये किसी अल्लाह पर ये यकीन ही नहीं रखते। अच्छी और बुरी, खैर और शर की तकदीर के ऊपर इनका ईमान ही खत्म हो गया है, इनको पता ही नहीं है। तवक्कुल अल्लाह खत्म हो गया। वो अल्लाह के जिसके बारे में कुरान में था कि वो तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब है, और ये इनको पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है शाह जी, बिल्कुल आप सही। ये जनाब ये रोले डाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपने दुख और दर्द, जिसका जो बस चलता है वो चलाता है। अगर तुम्हारा वो शोहर के साथ तुम्हारा कोई फड्डा हो गया तो औरत उस शोहर को वो पंडती है, वो जलील और ख्वार करके रख देती है। बिल्कुल अपनी सहेलियों के अंदर जो जिस महफल में जाएगी बदखोइयां अपने शोहर की, और जनाब जहां उसको मौका मिलना है उसने उसको पकड़ के रंधा फेर देना है। वाह मुफ्ती शोहरों साहब के वाह, भी यही हालात हैं। जबरदस्त जबरदस्त। हालांकि गैरत की जा थी, वो गैरत की जा थी। तू अपनी बीवी के तज़किरे अपने शोहरों के साथ दोस्तों के साथ कर रहा है, पागल हो गया क्या? तू पागल हो गया क्या? तेरा दिमाग हिल गया क्या? क्या तूने शराब पी हुई है? तो क्या तू नशे में है पागल इंसान? अपनी बीवी के तज़किरे तू शोहरों के दोस्तों के साथ कर रहा है। बिल्कुल देखिए ऐसे ही। दोनों तरफा ये जो है ना, इस्लाम बस नाम का रह गया है। ये मुसलमान कोई नहीं जी है। बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਵਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਬਸ ਇਹ ਚਲੋ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਸ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੈਂ 2 ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, 3 ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, 4 ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੈगाम ਕੀ ਹੈ। बेशक तो ये बातें हैं मेरे भाई। तो दोनों तरफा भाई जाहिल हो तुम, मान लेते हैं जाहिल हो, तुम्हें दीन का इल्म नहीं है। इतने भी तो नहीं हो कि तुम्हारा अल्लाह पर इत्काद नहीं है यार। इतने भी जाहिल क्या हुए भाई? मान लिया तू एक दिन भी मदरसे नहीं गया, एक दिन भी मस्जिद नहीं गया, तू दाढ़ी मुंडा है, तू दुनियादार है, तेरे पास दुनिया की डिग्रियां है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मान मुस्लिम तो है ना मियाँ, वो यार लड़की या लड़के मुस्लिम तो हो के नहीं। वो अल्लाह को भूल ही गए हो क्या? माशाल्लाह मुफ्ती साहब जबरदस्त। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, हाय बस वो है कि इंसान है ना, इंसान है। मैंने पहले कहा कि इंसान गलती का पुतला है। अल इंसान मुरक्कब मिनल खता, बेशक ये कायदा कुलिया बन चुका हुआ है। ऐसे ऐसे देखे हैं मर्दो जन दोनों देखे हमने, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। ऐसे ऐसे जालिम और जाबिर, ओए होए। मैं अब जिस इलाके में रहता हूं बहुत अप टू डेट इलाका है और पढ़ा लिखा अमीर तबका है, कॉलोनी है हमारी। अब मसाला मैं देखता हूं कि बड़े बड़े मामला देखे हमने। घर में जो काम करने वालियां होती हैं, बूढ़ी खवातीन होती हैं, कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं, कोई बुजुर्ग रखे हुए हैं घरों के अंदर,
कोई मतलब उनके साथ वो सलूक रवा रखा, उफ़ो यार, देख देख के मैं तो हैरान और बस देखता ही हूँ और कहता हूँ अल्लाह तेरी मखलूक को क्या हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल मुफ्ती साहब ऐसे ही है। वालेकुम सलाम। जी शाह जी कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, बहुत शर्मिंदा भी हूँ, तो प्लीज़ काइंडली माइंड नहीं करिएगा, मैंने आपकी बात को काटा है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास टाइम भी कम है। शाह जी एक छोटा सा सवाल है, अगर एक बंदा मुसलमान है, अक़ीदा तौहीद पर गामज़न है, हम उसको अहले किताब या मुशरिक या कि नॉन मुस्लिम होने का डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके ऊपर शरई हद क्या आती है? जी मैं अर्ज करता हूँ। असल में मौजू भी ये नहीं है, मौजू कोई और चला हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ, आप थोड़ा सा तशरीफ फरमा रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि मुसलमान अपने आप को समझ जाए ना, मैं मुस्लिम हूं, बस सेट हो जाएगा, सब कुछ ही सेट हो जाना है। और बंदे रहो, बंदे बंदे बनना सीखो, इंसान बन के रहो, आजिज आजिज आजिजी और इनके सारी वो जेवर है, जेवर ए मर्दों ए औरतों तुम्हारा जेवर है, इज्जो इनके सारी। भाई आप मुझे बताइए, महफल लगी है, औरत की एक चीज है, उसके अंदर उसकी फितरत में शामिल है बनाओ संगार, और जब वो किसी महफल के अंदर वो जाएगी तो खूब अपना इजहार करेगी कि मैं बड़ी अमीर हूं। वो जितना उसके पास जेवर होगा ना, वो सारा पहन के कीमती किस्म का उसकी लिबास, कीमती किस्म का जूता, हर चीज कीमती उसने, और खूब मेकअप, और उसने, ये औरत की फितरत के अंदर ये चीजें शामिल है। ये जो है ना, औरत औरत को दिखाना चाहती है कि मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तो भाई उधर तू अगर आजजी करे, एक करोड़ोंपति औरत एक सादा सा वाइल का सूट पहन के जाए, आहा आय हाय, कोई मेकअप नहीं, कोई जेवर नहीं, सादे से माहौल में जाएगी, मैं कहता हूं उसकी इस आजजी ने उस सब से उनको उसने बाला कर देना। हाँ, उस पूरी महफल को उसने जीत लिया, उस एक खातून ने। हाँ, तो मर्दों के भी यही मामला थे। और भाई जिस शाख को फल लगा होता है वो झुकी हुई होती है, झुक के रहो, आजिज बंदे बन के रहो। तो आज तो पता है क्या, कोई थोड़ा सा किसी को कोई आंख दिखाए ना, तो वो चौधरी पता है आगे से क्या कहता, ओ तू मैनू जानदा नहीं, ओ तू मैनू जानदा नहीं कि क्या तू क्या चीज है, गंदा नुतफा तो तू है, बिल्कुल गंदे नुतफे से तू पैदा हुआ है, तू मैनू जानदा नहीं, क्या खुदा बन गया तू, बिल्कुल और तू मैनू जानदा नहीं। यार जब इसने ये बात कही, आप मुझे बताएं, वो गैबी तौर पे खुदाई के दावे नहीं कर रहा, ऐसे जब्बार और कहार बन रहे वो हैं, झूठे मुकदमात करके मजलूमों को और कमजोरों को वो जेलों के अंदर डाला हुआ है, मुकदमे करवाए हुए हैं, छीना जपटी चल रही है, जिसका जहां पे जोर चलता है उसके पैसे मार रहे हैं, उसके दबा रहे हैं, फ्रडियां कर रहे हैं, धोखेबाजियां चल रही हैं। होए 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 होए, इतने जालिम हो गया इंसान। हाँ जी, बिल्कुल मुफ्ती साहब उम्मे रबाब $10,000 का जूता पहनती है, इसको बताओ कुछ। नहीं कोई नहीं, नाम नहीं लेते। तो वो एक बात, जब मुबल्लिग बात करता है वो जर्नली बात करता है, और वो मुफ्ती किसी के साहब नाम नहीं लेता। ये आसफ जी, भाई को कुछ खाना देना, ये कितने तड़प रहे हैं, कुछ अल्लाह खिलाओ इनको। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर फरमाए। तो गुजारा ये है कि ये जर्नली मुबल्लिग की जो तबलीग होती है वो आमतुन्नास के लिए होती है, उसमें सब आमो खास सब शामिल होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मुफ्ती और साहब, उसमें बहुत उसकी अपनी जात भी शामिल होती है, मेरी जात भी शामिल है। जो बातें मैं कर रहा हूँ अपने लिए भी कर रहा हूँ और आप सबके लिए भी कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल
राइट। तो माशाल्लाह। गुजारे ये है कि हमें एक एतदाल की जिंदगी गुजारनी चाहिए, एतदाल के अंदर रहें, आपे से बाहर ना हो। मर्दों के कुछ अपने हकूक हैं जो औरत के लिए लाजम है, जो औरतों के अपने हकूक हैं जो मर्दों के ऊपर लाजिम है। औरत के हकूक क्या हैं? शादी हो गई है एक जगह, बस तुम एक जगह बंध गई हो मोहतरमा, ये शरीयत ने तुम्हें बांधा है, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें बांध दिया है, बस वो ये सब तुम्हारे लिए। बिल्कुल तुम्हारे जितनी भी दरीना मोहब्बतें थी भूल जाओ, बस उसको दफन करके तो तुमने जिंदगी शुरू करनी है। हाँ, रत्ती बराबर भी साबका मोहब्बतों को अगर इधर लाई, जिंदगी तो खराब होगी ना, गया फिर काम, वो गया, वो नहीं बचना, वो आज नहीं तो कल काम खुल जाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये ना तू कहो कि मैं छुप छुपा के जो मर्जी करती, नहीं, खुल जाना है। सब तू भूल जा कि ये अल्लाह ने, ये अल्लाह भी अपने बंदे से बड़ा प्यार करता है। वो जड़ा शोहर है तेरा, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने उसके ऊपर खोल देना है। हाँ, इसी तरीके से जो मर्द है, मर्द की फिर अपने मामला है, सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि तो मर्दों के फिर अपने मामला है कि मर्दों, तुम्हारी अगर जितनी भी मोहब्बतें प्यारे थी, लेकिन अब शादी हो गई है ना, अब सब कुछ दफन कर दो। अव्वल तो वो काम ही गलत था, जो तुमने किया वो गलत था, बिल्कुल हराम था। बिल्कुल और अगर बिल फर्ज इंसानी नाते से हो गया, गलती हो गई, तो अब नहीं भाई, अब खत्म, अब कुछ और हो गया मां, बिल्कुल अब कुछ और हो गया। भूल गए थे। अब ये है कि वो जो तेरी तू लेके है ना, अब सारी मोहब्बतें प्यारे उस एक खातून के लिए तेरी होनी चाहिए। बेशक वो तेरी मोहब्बतों का मरकज है और वो तुझसे मोहब्बत चाहती है, बस तेरी तवज्जो चाहती है। बिल्कुल तो तुम दोनों अब खुद देखो कि इस कायनात का सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता बाद में आया है। माशाल्लाह। पहला रिश्ता जो है ना, मियां और बीवी का रिश्ता है, इतना मुकद्दस रिश्ता है। ये बहन भाइयों के रिश्ते बाद में, मियां बीवी का रिश्ता पहले। ये कायनात को अल्लाह ने इस तरीके से डिजाइन किया है, ये अल्लाह जो इसका डिजाइनर है वो तुम्हें ये बता रहा है कि ये कितना मुकद्दस रिश्ता है। तो इन रिश्तों को पामाल मत करो, बच्चे हो जाती हैं और जनाब छोटी छोटी वजह से वो आपस में उलझती है बच्चों के सामने। जब यकीन जानिए तो बहरहाल ये है अच्छा कि बच्चे जब हो जाए, कम अज कम अगर तुमने लड़ाइयां झगड़े करने हैं ना, तो औलाद से पहले पहले कर लो, वैसे तो करने ही नहीं है, लेकिन जब औलाद हो जाए तो औलाद के सामने एक बोल भी नहीं बोलना, मर्द औरत ने कभी भी नहीं। वो बच्चों के ऊपर इतने बुरे असरात मुरतब होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। बिल्कुल उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हो तुम। 100 यकीन मानो वो बच्चे सही जो पढ़ते नहीं है ना, उसकी मरकजी वजह तुम्हारी किल किल होती है। वो खौफो हरास के अंदर रहते हैं बच्चे, वो बोलते तो नहीं है, लेकिन वो खौफो हरास जो कुछ दिन भर में देखते हैं माँ बाप का झगड़ों को, मामलात को। इसी तरीके से एक और चीज बच्चों के ऊपर बड़ी असरअंदाज होती है कि छोटा बच्चा, उसके सामने उसकी माँ बैठ के किसी गैर मर्द से बात कर रही है, या उसको फिल्में ड्रामे देखते हुए वो देख लेता है वो बच्चा, वो अगरचे वो बोलता नहीं है या मतलब वो आपको महसूस नहीं कराता, लेकिन उसकी जो डायरी अल्लाह ने बनाई हुई है वो उसमें वो हर चीज सेफ होती जाती है। जब वो सन्ने शऊर को पहुंचता है ना, बड़ा होता है, उसको वो सारी डायरी खुल के सामने आती है, मेरी माँ तो ये थी। वो फिर औलाद तुम्हारी माँ की नाफरमान होती है। इसी तरीके से अगर बाप को इस तरह के गलत काम करता था बच्चों के सामने, वो बड़े होके वो बच्चे फिर गुस्ताख, बाप के गुस्ताख हो जाते। असल वजह ये होती है, तुम कहते हो मेरी बच्चे में बड़े
बदतमीज है। ओ भाई तो करतूते तुम्हारी हैं, अपनी करतूते तो भूल गया ना असल हुआ क्या था। आज रोला ये है कि मर्द कहता है जी कसूर औरत का है, औरत कहती है जी कसूर शोहर का है। अबे यार अपना कसूर कोई भी नहीं भाई, मेरा कसूर की है, तू कह ही दे ना यार बाकी मेरा ही कसूर है, कोई बात। तो ये हर एक को अपना 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 दामन देखना है और सफाई करनी है। रमजान का महीना है, रोजा रखे हुए हैं, तो अपने नफ्स की भी सफाई करें भाई। डिबेटें तो चलो करते ही रहते हैं, मुनाजरे तो करते हैं, वो एक अलग चीज है, हमारा एक टॉपिक अलग है। तो अपनी इस्लाह जरूरी है। अब हमने ये जो जामिया खत्म नबूवत बनाया है, इसकी मरकजी जो एक मरकजी किरदार है वो यही है कि रूह की भी इस्लाह हम बच्चों की करेंगे। हाँ, तरबियत याफ्ता बच्चे हम फारग करेंगे, ना कि एक किलो काल वाले नहीं, जुबान से रटी रटाई चीजें वाले नहीं, ना ना ना। जो सवाल लव इज लाइफ भाई ने किया है, तो ये है जी फतवा जाहिर के ऊपर लगता है। ज़ाहरी अमाल अगर किसी के इस्लाम मुखालफ है तो उसको कहा जाएगा इस्लाम मुखालफ है। ज़ाहरी अमाल या अफ़ाल उसके इस्लाम वाले हैं तो कहा जाएगा ये मुसलमान है। बस यही है इसका जवाब। जी आप हजरात बात कर ले। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत यूं खूब। था, शाह एक साहब मिनट मुझे बात कुछ और क्लियर है। कर लेने दें प्लीज़। अच्छा शाह साहब, हुआ कुछ यूं था कि एक दिन आपकी मैं ब्राड पे बैठा था, उधर किसी ने आपसे सवाल किया था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर ज़िंदा साबित होना करें, ये वो इस तरह की कोई बात चल रही थी, तो मैं भी वहीं मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी। जिसमें हुआ कुछ यूं था कि आपने उसे बोला कि आपको क्या ज़रूरत है कादियानियों की ब्राड पे जाने का, ये वो। मैंने फिर आपसे गुजारिश की, मैंने कहा हज़रत आपकी बात 100% ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं उनके पास जाने की, लेकिन चीज़ ये है कि हमारे पास कोई मुदल्लल बयान होना चाहिए जिस वजह से हम उनके मुंह को बंद कर सकें। जिसके बाद आपने ये बोला कि एक बंदा, आपने अपना नाम लेके कहा कि मैं घर से दही लेने गया हूँ, तो आगे में बंदर वाला खड़ा है, वो तमाशा कर रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है बंदर को देखने की? मैं बच्चों के पैम्पर लेने गया हूँ, दही लेने गया हूँ, मैं अपने काम से काम रखूँ, आपको क्या ज़रूरत है जाने की? मैंने कहा शेख इन चीज़ों से हम आपको तो कायल कर लेंगे या आप हमें कायल कर लेंगे, लेकिन उन लोगों को हम ऐसे कैसे कायल करेंगे? प्लीज़ आप रहनुमाई फरमा दीजिए। आपने बोला जी आपको कोई पूछता है तो उसको इधर लेके आओ। मैंने कहा शेख ये जवाब नहीं है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, या दूसरा भाई भी आपने उसके साथ यही किया, लिहाजा जवाब दें। फिर मुझे नीचे उतारा गया और आपके ये अल्फाज थे कि मैं बात को मतलब और क्लियर कर दूं। मैंने लास्ट पे बोला कि मैं उम्मे सिस्टर की ब्राड पे जाता हूं और वहीं पे उनसे मेरी इख्तलाफी राय ये है कि आप असरे हाज़िर के फ़ितने और लोगों को बताएं ये फ़ितने हैं, उनके हाल ये हैं, लेकिन वो चीज़ ये है कि वो उन लोगों को लेके आती हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ मेरी उनसे मतलब सोच डिफरेंट है, तो मैं उन्हीं के पास बैठता हूँ, इसलिए वो बताती हैं कि इस चीज़ का ये जवाब है। तो आपने मुझे नीचे उतार दिया इस बात पे। आपके अल्फाज ये थे कि सारा दिन असी लोगों को चारने हैं तो सानू चाड़ना आ गया। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये जिथे बहिंदा वो भी ये ने तो ये भी हो ही है। अब मैं सिर्फ इस चीज़ की वजाहत चाहता हूँ कि आपके ये जो अल्फाज थे मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं इसको कन्फर्म करना चाहता हूँ कि ये इसका क्या मतलब था। अच्छा गुजारा ये है कि जो आप कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी का मुझे रत्ती बराबर भी कोई इल्म नहीं है, पता नहीं किस जमाने की आप ये कहानी सुना रहे हैं। ये आज से तकरीबन आप सुन तो लें, माइक म्यूट मैंने आपकी गुफ्तगू में बोला तो नहीं हो ना, अब माइक म्यूट तो रखे ना, बाद में बोल लीजिएगा आप। मैं बोला तो नहीं ना, ये गुफ्तगू का अंदाज भी ये होता है, बंदा एक बात कर रहा हो दूसरा फिर खामोश रहे। या तो अगर आपने बोलना है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, तो आप बोल लें फिर जितना बोलना चाहते। नहीं शाह जी आप बताएं, आंसर दें इनकी बात का। हाँ तो मुझे इल्म नहीं आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। अगली बात ये है कि मसला आपने पूछा, उसका हल भी मैंने बता दिया। अब मसला वो मानना ना मानना वो आपकी अपनी खुशी है, मेरी तो नहीं है, वो तो आपकी सरदर्द है ना, मेरी तो नहीं है। तो अगली चीज ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
जिंदा मुर्दा, ओ भाई ये मौजू ही नहीं है हमारा, हम क्यों बताएं आपको। अगर तो आपने पूछा था, और अगर बिल फर्ज अभी पूछते हैं तो ये मौजू ही नहीं है, मैं आपसे डिस्कस क्यों करूंगा। मौजू ये है कि मिर्जे कादियानी को सच्चा साबित करके दिखाओ। वो पूरी जिंदगी जना करता रहा, शराबें पीता रहा, वो हराम कारियां करता रहा। हजरत ईसा जिंदा हो या मुर्दा हो, इससे मिर्जे का इसकी जिंदगी से क्या ताल्लुक वास्ता, वो कैसे सच्चा होगा साबित। बिल फर्ज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा साबित हो जाते हैं तो मिर्जा तो वहां क्या जानी का जानी रहा, शराबी का शराबी रहा, हरामकार का हरामकार ही रहा, उसको कैसे सच्चा साबित करना है, सवाल ये है। ठीक है, ये मौजू है। और खाम खा मतलब एक थर्ड पर्सन आके हमें कहे नहीं वो कादियानियों वाला एक सवाल लेके आ जाए और खुद को ये कह रहा है जी मैं मुसलमान हूं। ओ भाई तू मतलब तेरे साथ कोई बनता है, हमारी कोई बात करना ये बनता ही नहीं। ठीक है ना। रही बात ये कि मैं सेटिस्फाई नहीं है तो ना हो भाई, इससे भी कोई फर्क नहीं है। पर जाके उधर जाके सेटिस्फाई हो वो या ना हो वो सानू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਖਲੋਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਡਿੱਗੋ। हाँ सही है मुफ्ती साहब। चलो बहरहाल बात करें। रात गई बात गई, कभी कभी लव भाई उन्हें याद लव भी भाई नहीं कि कभी हमने क्या कभी हो बात जाता है यार। की, भूल गए हैं। देखें नहीं मेरी बात सुने, देखें ठीक है मुफ्ती साहब की बात, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें ज़रूरत क्या है उनसे ये बात करने की कि वो ज़िंदा है या नहीं, पहले वो उसका किरदार लेके आए मलून का। मैं माजरत चाहता हूँ, इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद जो शेख साहब ने मुझे, शाह साहब ने बोला कि मैंने इनको वाज़े बोला कि उम्मे सिस्टर के पास मैं बैठता हूँ तो वो बताती हैं, वो क्लियर करती हैं। तो शाह साहब ने मुझे बोला कि ठीक है तुम ही होना चाहिए, उत्थे ही बहना तेरी समझ आ गई है, इनू लाओ थल्ले। ये मतलब जो अल्फाज थे इसमें क्या मुझे कादियानी बनाया गया, क्या समझा गया, बाद में फिर वाज़े ये लफ्ज़ कहे गए कि ये भी कादियानी था, ये सारा दिन आते रहते हैं जाते रहते हैं। लव भाई कभी कभी होता है, वो ब्राड पर जो है ना वो हो जाती है ना गलत हो जाता है, कई बार ब्राड पर और बात चल रही होती है, कोई और करे तो फिर हो जाता है ऐसा कुछ। उस दिन से उस यार देखें मुझे देखें इस गलती की वजह से ਲਵ ਸਾਹਿਬ भाई ये बात बोलो ਤੁਸੀਂ ਨਾ मुफ्ती ਚਲਦੀ साहब। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हथ कप नहीं जाना फिर। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਰੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਤਰਬੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਛੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕਾ ਮਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਬਸ चुक दियो फट्टे ते पा लियो लम्बे, मेरा तो काम ही ये। सारी दुनिया मुझे जानती है, मेरे मजाज से वाकिफ है, मेरे जुबान से वाकिफ है, सारे लोग मुझे जो पुराने सुनने देखने वाले हैं। तो अभी ये आपका मौका महल नहीं था जो आपने मौजू शुरू कर दिए जी। सारे हमें हुक्म करें, आप एक बार इजाजत दें। नहीं सर ये देखें, मैं काफी दिनों से आपसे बात करना चाहता था, आपकी ब्राड पे भी जा रहा था। अच्छा चलो थोड़ी मेहरबानी चुप करके सुनो। चंगी भली रूहानी गुफ्तगू हो रही है, तरबीयती प्रोग्राम इत्थे हो रहा है ते तुसी वेखो ना मौजू दा रुख ही बदल देता है फड़ के। सर आपकी इस रूहानी गुफ्तगू की वजह से मैंने उम्मे सिस्टर की ब्राड पे आना छोड़ दिया था। इन्होंने आना छोड़ दिया क्योंकि मैंने समझा शायद ये भी कादियानियों में से है। लव भाई इस वजह से काफी अरसे ब्रॉड पे नहीं आए। मैं तकरीबन 1 महीना ब्राड पे ड्रामा कर रहे हैं। उम्मे सिस्टर क्या आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि मैंने कहा ये उम्मे सिस्टर कोई कादियानी है, तो ये कहना चाह रहे हैं आप क्या? ये बताएं मुझे, मैं तो अब समझाऊं। मुझे बोला ये उधर बैठता है, ये भी वही है, वो भी वही है। लवर बॉय मेरी बात सुनो भाई, आप मुसलमान हो ना? या भाई ड्रामेबाजी ना करो, समझ आई कि नहीं? ये ड्रामेबाजी ना करो। एक मिनट जी, एक मिनट सारे चुप हो जाए जरा। ड्रामेबाजी ना करो, समझ आई कि नहीं? बंदे दे बच्चे बन जाओ तो ड्रामेबाजी नहीं देखें। नहीं मैं तो कहना पिया, मैं तो लास्ट वार्निंग देना पे बंदे दे बच्चे बनो। ड्रामेबाजियां दिन बार असी बह के वेने आ ते शेख उस दिन भी आपके यही होई ना, मैं हुने में तो लम्मे पा लेना कोशिश नहीं करते। ये तो हुन दोबारा ड्रामा कीता दे शेख हद हो गई। हजरत गाले वे कि मैं एक सवाल कीता सी ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਵ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਹੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਸੀ
बात मुझे क्लिक लगता है हो ये गई यार लेकिन मेरी कादियानी बात है। सुनिए मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी मुझे बात लगता है की ये वजह जो से मैं लफ्ज है ना, गलतफहमी में मुझे आ लगता गया है हूँ। ये पक्का कादियानी है, ये लफ्ज अरे नहीं पक्का ना कुरकुरी कादियानी भाई है। आते हैं यहीं पर नहीं आते हैं नहीं हमारे कुरकुरी नहीं, भाई ये ये कादियानी कादियानी नहीं। नहीं नहीं है है भाई कुरकुरी नहीं भाई है किसी को भाई कादियानी देखो बोलना यही भी चीज गुनाह है, यही मैंने हाँ किसी को कादियानी मुसलमान तो को यही कादियानी मैंने बोलना भी गुनाह है। शेख नहीं साहब नहीं ने नहीं भी मुझे यही कहा था कि नहीं, आप नहीं। कादियानी हो, हाँ हाँ यही मुझे मैं अभी ऐसा कह रहा हूँ जो हाँ कुरकुरी आप कह रहे हैं। हाँ हाँ तुम कादियानी हो। मैंने जब ये सवाल किया, मेरी बात ना सुनो, करो सवाल, तुम ना करो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मैं ना करो तुम कादियानियों पे सवाल, लानत भेजता हूँ, ना मैं करो मिर्जे तुम पे लानत तुम भेजता ना हूँ। क्यों करो, ना करूँ, क्यों ना तुम करूँ? ना करो, तुम तुम कौन ना होते करो, हो? क्यों ना करूँ? ना करो। क्यों ना मौलाना करूँ? तुम मौलाना कादियानी हो। तुम्हें सब लोग इतने समझा रहे भाई, जो हो गया सो हो गया, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ। और नहीं भाई पत्थर का दौड़ नहीं है और मौलाना सर को भेड़ बकरियां। मौलाना जाओ दूसरे ब्रोडों पे बैठो, आओ मुझसे मेरे साथ गले लगा लो, मेरे ब्रोड पे आओ मौलाना, बैठो, मैं तुमको रोजाना जो है ना दो शेर मार दिया करूंगा, और बैठो मुफ्ती मेरे साहब साथ ये कोई मौलाना। पत्थर का दौड़ नहीं, मौलाना मेरी छोड़ो बात भाई, सुने। नहीं है बैठो मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें शेर मारता हूँ, छोड़ दो मौलाना, ये प्रिंसेस कौन सी देख रही बात है हैं। यार। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर कुरकुरी इतने भाई प्रिंसेस खिलाफ तो मुफ्ती सही साहब नहीं है ना। सही पकड़ा है आपने। भाई ये आप लोग मुफ्ती सब डिंग चुप हो डांग जाए प्लीज। जिंदाबाद। दो मिनट चुप हो अजीब जाए सर। खबासत है यार, बस मुफ्ती नहीं साहब ने मेरे पास आ जाए, मैं अपना शजरा नसब मौलाना रख देता हूँ, ये अपना रख दें, ये तुम्हारे साबित शजर करवा दें नसब ये से मैं क्या कादियानी नहीं करूँ, है। तुम्हारे शजर से मैं खेल खाऊं। इनको दोनों को नीचे उतार दे। देखे मैंने शेख हाँ, साहब बात से ही यही नहीं, मैं रिक्वेस्ट दोनों को की है उतार कि दूंगी एक बंदा नीचे। कादियानी नहीं है, उसको कादियानी क्यों कहा दोनों को जा नीचे रहा उतार है, मुझे दे। इस चीज का एक गुस्सा है। बात सुनने आप लोग, बस बात खत्म करें, खत्म। उनको गलत फहमी थी, अब उनको किसी वो टून में होंगे, इसलिए उन्होंने आपको भी उसमें लताड़ दिया, अक्सर उन्हें पता नहीं चलता। आप ये बात देखें, हम सब ये बात समझते हैं, यहाँ पे हम सब जो लोग बैठे हुए हैं, हम ठीक है, वो सब बात सब क्लियर हो गई, अब आप ही खत्म हो गई वो तरफ से बात। काम लेना, अजीब मतलब बात और है यार। खाम कायदा देखे मौजू इतना उलमा अच्छा चला हुआ था, संजीदा मौजू के ऊपर मुफ्ती गुफ्तगू हो साहब रही आकर है यहाँ इस बारे और में बात खाम करें, का ही आगे बीच में साहब को बात एक करने यहाँ दें। वाज नसीहत कर रहे शाह जी को लोगों को। बात करने दें, नहीं, बस अब सब आज से खामोश हो 1.5 जाए। महीना स्टार्ट पहले करें, मेरे आप साथ ऐसा अपना हुआ, मौजू ऐसा स्टार्ट हुआ, करें। ऐसा हुआ, सारे तो मौलाना, लोग ये खत्म कोई कर दें बात है? बात। ये भी कोई बस बात है? सही शाह जी को रमजान का बात महीना करने शुरू हो दें, गया, बोले आप। अजीब बात है यार। चले अल्लाह से बस शर्म कोई करो नहीं, मौलाना। ठीक है भाई। ऐसा क्या नाम है आपका? लव इज लाइफ साहब, नाम नहीं मुझे पता आपका। ऐसे नहीं करते, बंदे बन के रहते हैं। और कभी कोई इस तरह की गुफ्तगू करनी हो तो जो हमारी डिबेट वाली ब्राडें होती हैं, बल्कि उमेर बाप की ब्राड के ऊपर भी डिबेट होती है, लेकिन मौजू देख लिया करे, मौजू कौन सा छिड़ा हुआ है, मौका महल को देख के बंदा गुफ्तगू करता है। समझ आई कि नहीं ये तरीका करो। मैंने पहले आपसे माजरत अब बस की ठीक है, है, मुझे बात चुप हो मौका जाए, नहीं मिल रहा मेहरबानी। था, अब मैंने मजीद आपसे पहले माजरत कर माजरत करके की ना है। तो मजीद काम अभी आपने ये बिगाड़ना है, वो माजरत हो गई है आपकी। तो बात ये है साहिबान, ये अल्लाह का, अल्लाह रसूल का ये महीना, ये रमजान शरीफ की इतनी बरकतें, तमाम महीनों का सरदार महीना, और इसमें इबादत बहुत ज्यादा होती है, रियाजत बहुत ज्यादा होती है, सदका और खैरात बहुत ज्यादा होता है। तो इसके अंदर कम से कम दीनदार और दुनियादार दोनों तबकों को चाहिए कि भाई अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से लो लगाएं, और अपने जो नकायस है वो दूर करने की कोशिश करें। जो जिसके भी जो नकायस हैं, अल्लाह सत्तार है, उसने छुपाया हुआ है तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी करतूतों को। पता नहीं तुम हजारों करतूतें करते हो, वो तो अल्लाह को पता है ना। वो देखो, वो तुम्हारे कितना प्यार करता है तुमसे कि उसने तुम्हारे गुनाहों को छुपा के रखा है, लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। तो ये बातें हैं। और शुक्र, फिर वहां पे शुक्र बनता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र करोगे नेमत बढ़ेगी, शुक्र से नेमत बढ़ती है। और तुम फिर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे तो वो फिर नेमत छिन जाएगी। तो ये बहाने से अपने अल्लाह को याद किया करो, दिल लगियां किया करो, लव किया करो, अल्लाह पाक से किया करो, अल्लाह पाक के प्यारे नबी से किया करो, औलिया अल्लाह से प्यार किया करो, अल्लाह वालों से प्यार किया करो। जो अल्लाह वाले हैं, जिनको कहते ही वली अल्लाह है, यानी अल्लाह का दोस्त, उनसे प्यार करो।
तो अपनी जिंदगी को कोई ऐसे गुजारे, इत्तदाल में गुजारे। तो घर के जो खानगी मामलात होते हैं, घरों के जो मामलात, उनको आप देखो मियाँ बीवी दोनों ने सुलझाना होता है। तो कोई ऐसी नौबत ना आने पाए कि तलाक तक बात जाए। भाई कोई नहीं, अगर शोहर से कोई गलती हो गई है, वो किसी लड़की को पसंद करता है, लड़कियों से बातें करता है, लड़कियों को फंसाता है, लड़कियों के साथ ये करता है, क्योंकि औरतों के उमूमी तौर पे ये होता है। कोई दुनिया की शायद कोई औरत ऐसी नहीं होगी कि जिसका ये शिकवा ना हो कि मेरा शोहर जो है ना बाहर औरतों के साथ इसके मामला चल रहे। हर औरत की जुबान पे ये होता है। तो ये है कि अगर हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो तुमसे बड़ा प्यार करता है, ए बीवी साहबा, वो तुमसे बड़ा तुम्हारा शोहर प्यार करता है, तुम्हें पता भी नहीं है। और ए शोहरो, तुम्हारी बीवियां भी तुमसे बड़ा प्यार करती हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुझे याद आ गई है, फरमाया कि औरत वक्त की कंजरी ही क्यों ना हो, वो 1000 मर्दों से दिन भर में मुंह क्यों ना काला करवाती हो, लेकिन वो प्यार सबसे ज्यादा अपने शोहर से ही करती। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी क्या हो गया है? जी कुछ नहीं हुआ जी, अभी तो दर्स जारी है। अच्छा दर्स जारी है, ठीक है। तो गुजारिश ये है कि आपस में कोई अगर हो जाए कोई मसला तो घर में बैठ के प्यार मोहब्बत से, अगर औरत नाराज है तो शोहर का काम है उसको प्यार मोहब्बत से समझाए कि मेरी बीवी ये मसला ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। अगर शोहर नाराज हो गया तो बीवी का काम है उसको प्यार मोहब्बत से समझा दे, बस इतना ही। अंदर का काम अंदर खाने निपटा लो। जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एम मलिक साहब, एफ मलिक साहब। मैं कोई गल करना चाहना वा, अगर मैं सिस्टर इजाजत दो ते। उमेर बाब मुझे इजाजत दे, आप हजरात तशरीफ रखे, ठीक है जी बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा मुफ्ती चलो साहब एक हमारा भी मिनट, एक मुफ्ती दर्स साहब शामिल एक बीच मिनट, में। शाह जी एक मिनट, शाह जी एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है, फरमाएं जल्दी। लव जड़ा है ना जी, अपना कनिंग आदमी है, ये जान बुझ के जड़ा है ना वो शरारती सवाल करदा वे, और इन्हू पता वे की कर रहा है, और इन्हें लिबादा ओढ़िया एक उन्हां दा मुसलमान होने दा। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट, वो प्रॉपर पक्का कादियानी, और उन्हां दा पूरा वो लैके चल रहा वे जड़ा वे प्रोग्राम। कौन? लव इज लाइफ जड़ा हुंदा। अच्छा ये उमेर बाब अभी ना इन्होंने जो आप कह रही थी ना क्या हुआ है? नाउजुबिल्लाह। मेरा भाई मेरी बात सुनिए, ये चीज आपने मुझे साबित करवानी है। अगर आप साबित ना करवा सके तो आप अपने आप को कादियानी डिक्लेयर करोगे। ओ मेरा भाई गल सुन, क्योंकि सहरी आर्गुमेंट कोई नहीं है, आर्गुमेंट कोई उमेर बाब साबित करवाना, मुझे डिक्लेयर करवाना है। कोई नहीं, तो वो मसला हुआ है थोड़ा सा। एक मिनट शाह जी, शाह जी मेरे ख्याल लव मेरा भाई पंजाबी इनको मैं अपना एड्रेस देता हूँ, ये साबित करवाएंगे। वो गल सुन ना यार, जी, साबित जी। करने है तेन। खलो जा तू एडा शियार, तू खलो जा। जी भाजी बोलो बोलो। एक मिनट, पंजाबी तू सियालकोटी बंदा में, ठीक है, पंजाबी बोल। भाजी तुसी मेरे ते फतवा ला रहे हो। तू उर्दू बोलन लग मैं गुजराले दा, अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ते दी गुजराले दा। नाल ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। अच्छा मेरे भाई तेनू अगर दुख लगा ना, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? मेरी ਤੁਸੀਂ गल ਇਹ तो ਚੀਜ਼ सुन, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, तू ਮੇਰੀ ਗੱਲ बोलदा ਸੁਣੋ। ਰਵਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा फिर वो जे गलत होया ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ना वो जे गलत होया तो मैं माफी मांग लेना। खलो ते जा हुण सी गल पूरी क्यों नहीं करन दिंदा तू?